Good morning and Jai Hind, students. My dear kids, in the last class we have discussed till the structure of antibody. यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था बच्चों, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखा था. बिकॉज यू नो आवर इम्यून सिस्टम इज बेस्ड ऑन मेमोरी एंड T lymphocyte and B lymphocyte. Two lymphocytes are just associated with our immune system to analyze the mechanism of immune system. In active immunity, we have seen that when the pathogen enters inside our body, the immune system produce antibodies. Basically, B lymphocyte produce antibodies. That is active immunity and it is slow. Whereas in passive immunity, we have seen that we take the antibodies from the external sources, out sources, and it is faster process than the active immunity. So see here, the antibody structure of antibody, which we have already discussed in the last class, that it is also known as H2L2. लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था, जब डायग्राम आप बना रहे थे तो H2L2 वहां लिखा था, अगर आपको याद हो. क्योंकि एंटीबॉडी कंसिस्ट ऑफ टू हैवी चेन एंड टू लाइट चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड. देखिए ये पॉलीपेप्टाइड चेन है. चिल्ड्रन यू नो वेरी वेल दैट पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड. देखिए ये एक हैवी चेन हो गया, दिस वन इज हैवी चेन एंड दिस वन इज हैवी चेन एंड दिस वन आर लाइट चेन. दो लाइट चेन दिखाई दे रहा है. देखिए यहाँ लाइट चेन लिखा भी है एक का नाम, और यहाँ इस हैवी वाले का नाम लिखा हुआ है हैवी चेन. तो दो हैवी चेन पेप्टाइड के और दो लाइट चेन होने के कारण ही बच्चों एंटीबॉडीज आर कॉमनली नोन एज H2L2. इसको H2L2 से डिजिग्नेट किया जाता है. H2L2 refers for two heavy chains and two light chains of polypeptides which make the antibodies. And in 11th class, basically when we were discussing the biomolecule chapter, then we have seen the quaternary structure of protein also. Children, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी स्ट्रक्चर, ये तीनों तो हम लोग एनसीईआरटी में 11th क्लास में पढ़े ही थे, पढ़ना था. लेकिन हम लोगों ने क्वाटनरी स्ट्रक्चर भी पढ़ा था कि कुछ ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिनमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं. और यहाँ एंटीबॉडीज बेस्ट एग्जांपल यू आर सीइंग चिल्ड्रन, हैविंग 4 पेप्टाइड चेन्स, 2 heavy and 2 light, 2 heavy chains and 2 light chains. That's why they are said to be as H2L2. और ये एंटीबॉडीज स्पेसिफिक है, इनको पर्टिकुलर एंटीजन से जाके बंध जाना है. तो दिस वन इज एंटीजन बाइंडिंग साइट. यहाँ पर भी देख रहे हैं आप एंटीजन बाइंडिंग साइट. This one is N-terminal and this one is C-terminal, children. As you know that this one is peptide chain made up of amino acid, and amino acid has two terminal ends which are amino terminal and carboxylic acid terminal. C representing here the carboxylic acid terminal and N representing here the amino terminal. तो अमीनो टर्मिनल और कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल से ये देख रहे हैं आप 4 पेप्टाइड चेन्स, और ये आपस में जुड़े हुए हैं डाइसल्फाइड ब्रिज से. ध्यान दीजिए, दिस वन इज डाइसल्फाइड ब्रिज थ्रू विच दिस पेप्टाइड चेन्स आर ज्वाइन टुगेदर. तो ये डाइसल्फाइड ब्रिज देखिए यहाँ पर भी बना हुआ है, यहाँ पर भी. इधर देखिए लाइट चेन्स के में भी आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज, और लाइट और हैवी के बीच में भी आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज. तो ये लाइट चेन्स और हैवी चेन्स ये ज्वाइन टुगेदर होते हैं बाय मींस ऑफ डाइसल्फाइड bridge. So this one is the structure of antibody, children. Okay, now see the human immune system, the mechanism. ध्यान दीजिएगा, the mechanism of innate immunity जो बर्थ से ही होती है. The mechanism of innate immunity provide the initial defense against infection. ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, कोई पैथोजन आता है, तो इनिशियल डिफेंस हमें इनेट इम्यूनिटी देती है. यू कैन से द फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, the cellular and cytokine, the interferon, and the adaptive immune response which comes through the acquired immunity. In fact, so adaptive immune responses develops later, बाद में. adaptive immune response बच्चों यह बाद में डेवलप होते हैं and require the activation of lymphocytes. और इसमें lymphocytes का activation चाहिए. As you know that there are T lymphocytes and B lymphocytes present in the human immune system, acting as the barrier, or you can say acting as the enemies of antigen or pathogen, and just function to counteract the antigens. और antigens के प्रभाव को खत्म करने के लिए ये B lymphocyte और T lymphocyte काम कर रहे होते हैं. बच्चों जब मैं एड्स पढ़ा रहा था इसी चैप्टर में, तब हम लोगों ने देखा भी था कि फर्स्ट ऑफ ऑल T lymphocytes
just recognizes the particular antigens and secretes a toxic substance perforin, and then only a B lymphocyte can be activated to produce the particular antibodies to counteract the antigen, ताकि वो पर्टिकुलर एंटीजन को काउंटरैक्ट कर दे। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमारा इम्यून सिस्टम मेमोरी बेस्ड होता है, अब मेमोरी के आधार पे काम करता है। तो जैसे ही कोई एंटीजन आता है उसको तुरंत जो है टी लिम्फोसाइट रिकॉग्नाइज करता है। कई तरीके के टी लिम्फोसाइट होते हैं बच्चों, यहाँ पे मैं अभी डायग्राम में आपको दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। दीज आर द टी लिम्फोसाइट्स, ये रिकॉग्नाइजिंग टी लिम्फोसाइट्स है जो रिकॉग्नाइज करेगा और फिर बी लिम्फोसाइट को इंड्यूस करेगा एक टॉक्सिक केमिकल सीक्रेट करके, दैट इज परफोरिन। तो यहाँ पर यह देखिए टी लिम्फोसाइट रिकॉग्नाइजिंग टी लिम्फोसाइट है जो एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया और फिर परफोरिन सीक्रेट करके बी लिम्फोसाइट को इंड्यूस कर रहा है यहाँ पर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए। ये देखिए बच्चों दूसरा जो ये टी लिम्फोसाइट है यह बेसिकली फैगोसाइट का काम करेगा। और यह देखिए मैक्रोफाजेज हैं जो कि फैगोसाइट्स भी कहे जाते हैं, या फैगोसाइटोसिस कर लेंगे, इनगल्फ कर लेंगे जर्म्स को डायरेक्टली। और यह तीसरा नंबर देख रहे हैं आप, इसको किलर टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं बच्चों। यह किलर टी लिम्फोसाइट्स है जो कि जर्म्स को डायरेक्टली किल कर देते हैं। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप हेल्पिंग, ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स बेसिकली ये हेल्प करने का काम कर रहे हैं। यह जो है बी लिम्फोसाइट को इंड्यूस कर रहे हैं परफोरिन सीक्रेट करके। और उसके बाद यहाँ पर ये हेल्पर टी सेल्स देख रहे हैं आप बच्चों, ये हेल्पर टी सेल्स जो कि डायरेक्ट यहाँ पर इनगल्फ कर ले रहे हैं एंटीजेंस को या जर्म्स को। और जबकि यह टी लिम्फोसाइट्स किलर टी लिम्फोसाइट्स जो कि किल कर दे रहे हैं एंटीजेंस को या जर्म्स को या पैथोजेंस को। सो चिल्ड्रेन, cells of the immune system you are seeing here, that eosinophil, basophil, neutrophil, monocyte and lymphocyte. As we know very well that WBCs are of 5 types. बच्चों WBCs 5 तरीके के होते हैं। तीन ये जो देख रहे हैं eosinophil, basophil और neutrophil, ये तीनों ग्रेनुलोसाइट और ये दोनों एग्रेनुलोसाइट। तो कुल मिला के ये 5 तरीके के जो है, ये देखिए एग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट और ये दोनों ग्रेनुलोसाइट। तो कुल 5 तरीके के WBCs जो कि इम्यून सिस्टम से हमारे जुड़े हुए हैं बच्चों। या मोनोसाइट्स जो हैं या मैक्रोफाजेज का काम करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं, डायरेक्टली इनगल्फ कर लेते हैं एंटीजेंस को। और जबकि यहाँ पर देख रहे हैं जो मेन इम्यून सिस्टम को बनाने वाले लिम्फोसाइट सेल्स, दैट इज टी सेल्स एंड बी सेल्स। या टी और बी सेल जो आप देख रहे हैं बच्चों, यही मेन वाले लिम्फोसाइट्स हैं, टी सेल्स और बी सेल्स। ये टी सेल्स जो होते हैं बच्चों, ये हेल्पर टी सेल्स अलग होते हैं जो रिकॉग्नाइजिंग का काम करते हैं, बी लिम्फोसाइट को इनगल्फ करते हैं। इसके अलावा अभी पीछे आपने किलर टी सेल्स को भी देखा जो कि एंटीजेंस को किल करते थे। और जबकि यह बी सेल्स बच्चों, यह पहले तो एक्टिवेट नहीं होते हैं, लेकिन जब टी लिम्फोसाइट एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और परफोरिन सीक्रेट करते हैं, तब जाके यह बी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चों यह पूरा मैकेनिज्म दिखाई दे रहा है इम्यून सिस्टम का, हमारे ह्यूमन इम्यून सिस्टम का, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये देखिए इस तरीके से ये एंटीजन आ रहा है, एंटीजन कम्स इनसाइड आवर बॉडी एंड हियर the T helper cell, T helper cell and T helper cell. This one is just the recognizing cell, recognize and just stimulate the B cells और B cells के मेमोरी को स्टिमुलेट कर दिया और फिर B सेल जो है यहाँ पर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि एंटीजन से काउंटरैक्ट करने के लिए यहाँ पर काउंटरएक्शन चल रहा है। दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पर टी हेल्पर सेल जो ये मैक्रोफाजेज के पास ले जाएंगे, यहाँ पर पैथोजेंस को मैक्रोफाजेज के पास, मैक्रोफाजेज फैगोसाइट्स होते हैं WBC के प्रकार जो कि डायरेक्टली इनगल्फ कर लेंगे पैथोजेन या एंटीजन को। एंड दिस वन इज किलर टी सेल, डायरेक्टली किल द एंटीजेंस आर pathogens. So this one is the human immune system, children. And in the last class we have seen that immunity is of 2 type, adaptive या acquired और दूसरा innate। और innate के अंदर बच्चों हम लोगों ने 4 तरीके की इम्यूनिटी देखा था, that is physical, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और बैरियर। और जबकि ये एडाप्टिव इम्यूनिटी जो है बच्चों, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यह भी 2 तरीके की होती है बच्चों, नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल या मैनमेड भी। नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों ही कंडीशन में एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी होगी बच्चों। नेचुरल कंडीशन में देखिए जो प्राकृतिक तरीके से हमें मिलता है, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी मैटरनल। अगर मदर के मिल्क की बात किया जाए तो मदर का मिल्क भी हमारे अंदर एंटीबॉडीज को बना रहा है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करवा रहा है, लेकिन दैट इज पैसिव इम्यूनिटी।
और जबकि नेचुरल इन्फेक्शन वगैरह के थ्रू जो इम्यूनिटी होती है दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी, जो आइडेंटिफाई कर लेता है टी लिम्फोसाइट्स। उसी तरीके से आर्टिफिशियल देखिए यहाँ पर जो एंटीबॉडी का ट्रांसफर हो रहा है हमारे शरीर के अंदर दैट इज जो एंटीबॉडीज के थ्रू हम करा रहे हैं दैट इज पैसिव एंड फास्टर। और जब हम इम्यूनाइजेशन कर लेते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू और हमारा शरीर पर्टिकुलर एंटीजेंस के अगेंस्ट इम्यूनाइज हो जाता है और उस कंडीशन में जो है जो इम्यूनिटी होती है वो एक्टिव होती है, स्लोअर रेट से होती है। और जबकि जब हम एंटीबॉडी ट्रांसफर से या आउटसोर्स से एंटीबॉडीज लेते हैं तो वो फास्टर होती है और पैसिव होती है। सो दिस वन इज द चार्ट ऑफ इम्यूनिटी इन ह्यूमन बीइंग and you have seen that active immunity and passive immunity. Active is slower, passive is faster. Active is basically natural, example mother's milk or you can say vaccination या immunization, और passive immunity that is maternal and artificial. तो passive immunity maternal या artificial हो सकती है या faster है, और जबकि एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल और वैक्सीनेशन हो सकती है, और नेचुरल में भी मैंने बताया आपको। तो इस तरीके से जो है बच्चों हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को देखा। यहाँ पर एक रिटन स्लाइड है जिसके थ्रू आप एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को नोट भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, एक्टिव इम्यूनिटी, इम्यूनिटी यू डेवलप आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू एन इन्फेक्शन। जब हमें किसी एंटीजन का इन्फेक्शन होता है और हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं तब इसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं बच्चों, यह स्लोअर होता है। और जबकि पैसिव इम्यूनिटी, दैट इम्यूनिटी यू कैन एक्वायर फ्रॉम समवन और समथिंग एल्स, दैट इज द आउटसोर्स। एंड हियर एक्टिव एंड पैसिव बोथ आर बाइफर्केटेड इनटू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। इन पैसिव इम्यूनिटी यू आर आल्सो सीइंग that it is also bifurcated into natural and artificial. So children, after the immunity, now come to the next important topic that is lymphoid organs. हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा एक लिम्फेटिक सिस्टम भी चल रहा है बच्चों। ब्लड का ही फिल्टर्ड पोर्शन लिम्फ जो कि लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर लगातार सर्कुलेट कर रहा है ब्लड की तरीके से, और ये डिफरेंट लिम्फोइड ऑर्गन्स जो हमारे इम्यूनिटी से जुड़े हुए हैं बच्चों, क्योंकि इसमें केवल डब्ल्यूबीसीज ही जो है रहते हैं लिम्फ के अंदर, आरबीसीज नहीं रहते हैं, इसीलिए इसका रंग व्हाइट होता है। और डब्ल्यूबीसीज के पाए जाने के कारण इसका इम्यूनिटी से सीधा रिश्ता है। आप देख रहे हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स बेसिकली बोन मेरो एंड थाइमस, स्प्लीन, लिम्फ नोड एंड पेयर्स पैचेज। तो बच्चों आपको अभी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आगे हम लोग डिटेल में इसको देखेंगे कि बोन मेरो एंड थाइमस आर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ध्यान दीजिएगा, बोन मेरो एंड थाइमस आर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, whereas spleen, lymph node, Peyer's patches, these are the secondary lymphoid organs. तो lymphoid organs की भी दो कैटेगरी होती है बच्चों, एक प्राइमरी lymphoid organ और दूसरा सेकेंडरी lymphoid organ। देखिए इसको, lymphoid organs, lymphoid organs and main path of lymphatic vessels, primary lymphoid organs, the bone marrow and thymus। मैंने बताया आपको पीछे ही कि bone marrow और thymus को प्राइमरी lymphoid organ कहा जाता है, where B and T lymphocytes are formed, जहां पर बी और टी लिम्फोसाइट रेस्पेक्टिवली बनते हैं, रेस्पेक्टिवली क्रमशः। ध्यान दीजिएगा, यानी बोन मेरो के अंदर बी लिम्फोसाइट और थाइमस के अंदर टी लिम्फोसाइट। आपको पता है बच्चों कि थाइमस इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड सिचुएटेड इन द सेंट्रल कैविटी जस्ट बीनीथ द हार्ट एंड सेंट्रल कैविटी ऑफ चेस्ट इन फैक्ट, एंड इट डिजेनरेट्स एज वी ग्रो अप। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है 11 साल के बाद यह डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है, और लगभग 55 एज के बाद यह कंप्लीटली डिजेनरेट हो जाता है। थाइमस सिक्रीट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन थाइमोसिन व्हिच मेंटेन द इम्यून सिस्टम इन चिल्ड्रन। तो यहाँ पर देख भी रहे हैं आप कि थाइमस के थ्रू टी लिम्फोसाइट, बाद में टी लिम्फोसाइट सब कुछ रिकॉग्नाइज कर लेता है, इसीलिए थाइमस का रोल समाप्त हो जाता है या लगभग समाप्त हो जाता है। तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर bone marrow and thymus are the primary lymphoid organ. In bone marrow, B lymphocytes are being produced. In thymus, T lymphocytes are formed respectively. And the secondary lymphoid organs include the lymph node, मैंने पीछे भी दिखाया था, lymph node, spleen, Peyer's patches, और उसके अलावा आप देख रहे हैं that is mucosa associated lymphoid tissue, that is MALT. Children, it is very important because the inner lining of our gastric tract, our alimentary canal, our digestive tract are basically known as mucosal wall or mucosal membrane, and the lymphoid tissue associated with mucosal membrane are known as the MALT, that is mucosa associated lymphoid
टिश्यू। तो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू को बच्चों कहा जाता है माल्ट। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर द बोन मेरो एंड थाइमस। In bone marrow we have seen that B lymphocyte are being produced, and in thymus we are seeing that T lymphocyte are being produced, are formed. And the secondary lymphoid organs includes lymph nodes, mucosa associated lymphoid tissue, that is MALT, and spleen children. Spleen is basically known as graveyard of RBCs. इसको आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है बच्चों, और ब्लड का इसको फिल्टर पार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि स्प्लीन से जब ब्लड आगे बहता है, आगे सर्कुलेट होता है, तो डेड सेल्स जो रहते हैं वो स्प्लीन में ही रुक जाते हैं और फिल्टर्ड ब्लड फिर से आगे सर्कुलेट होता है। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है बच्चों। सो प्लीज नोट इट, आई एम जस्ट गिविंग 2 minutes फॉर राइटिंग द लिम्फोइड ऑर्गन्स, and please mention the primary lymphoid organs which are which are the bone marrow and thymus, and also mention the secondary lymphoid organs which are the MALT, mucosa associated lymphoid tissue, lymph nodes and spleen. So please take 2 minutes to write it, then we shall discuss in detail the next topics. Okay, now I think that you have written about the lymphoid organ, that lymphoid organs and the main path are lymphatic vessels. So children, in the lymphatic system or lymphoid system, the organ system in invertebrates, that is the part of the circulatory system and the immune system. मैंने बताया आपको, क्योंकि lymphatic system में लगातार lymph सर्कुलेट कर रहा है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का भी पार्ट हो गया, और यहाँ पर टी और बी लिम्फोसाइट्स बन रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम आल्सो। इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स चिल्ड्रन। इसमें लिम्फेटिक वेसल्स का एक बहुत ही लार्ज नेटवर्क होता है, लिम्फेटिक या लिम्फोइड ऑर्गन्स का, प्राइमरी और सेकेंडरी हम लोगों ने देखा अभी, एंड द लिम्फोइड टिश्यू। एज वी हैव सीन दैट बोन मेरो एंड थाइमस are the primary lymphoid organ, whereas the Pierce patches and the spleen and the lymph nodes and the mucosa associated lymphoid tissue are the secondary lymphoid organs. As I have already told you that the inner lining of our gastrointestinal tract, our respiratory tract, digestive tract and our reproductive tract are said to be as the mucosal membrane, and the lymphoid tissue associated with mucosal membrane are said to be as MALT. उसके लिए माल्ट एक वर्ड दिया गया, MALT। माल्ट बोले तो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। सो चिल्ड्रन, यू हैव सीन द लिम्फोइड ऑर्गन्स, नाउ सी द लिम्फोइड ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के अंदर हम लोग देख रहे हैं बच्चों डिफरेंट लिम्फोइड ऑर्गन्स की पोजीशन को। ये देखिए टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स भी हम देख रहे हैं यहाँ पर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, थाइमस और बोन मेरो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ रेड कलर से बच्चों यहाँ पर प्राइमरी ऑर्गन्स लिखे हुए हैं लिम्फोइड, और ब्लू कलर से यहाँ पर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। बेसिकली जो ये लिम्फ नोड है, देखिए लिम्फ नोड जगह जगह पर रहेंगे, गांठ बनाएंगे लिम्फेटिक वेसल्स। ये स्प्लीन है, तिल्ला, स्प्लीन या तिल्ला बोलते हैं बच्चों, दैट इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, एंड दीज आर द पियर्स पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इनफैक्ट ये जो पियर्स पैचेज है, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़े हुए पियर्स पैचेज है, ये लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, जहां पर टी लिम्फोसाइट बन रहा होता है। एंड दिस वन इज अपेंडिक्स, appendix, that is the vestigial organ also hanging over the cecum, that is the initial portion of large intestine. And here again we are seeing the lymph nodes. तो पूरे पूरे lymphatic system में जगह जगह गांठ पाया जाएगा, जिसको lymph node कहा जाता है बच्चों। और यह spleen graveyard of RBCs, filter of blood in fact। lymph node के बाद हम लोग Pierce patches भी देखे, appendix में भी Pierce patches पाए जाते हैं और large intestine में भी। इसके अलावा यहाँ पर thymus और बोन मेरो विच आर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। थाइमस और बोन मेरो बच्चों यह प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है, जबकि लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल, स्प्लीन, पियर्स पैचेज और अपेंडिक्स, और सबसे अच्छा एग्जांपल माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, दीज आर द एग्जांपल ऑफ
secondary lymphoid organs. So children, the lymphoid organs, again we are seeing here that the primary lymphoid organs are the bone marrow and thymus, and secondary lymphoid organs including spleen, यहाँ देखिए spleen, lymph node and other lymphoid tissues such as tonsils and malt, which are mucosal associated lymphoid tissue or mucosa associated lymphoid tissue. So in this way, children, we have covered the portion related to immunity. In immunity, we have seen that immunity is the capacity of body to fight against disease-causing agents or pathogens or antigens. And immunity is of two types, that is innate and acquired. In innate, we have seen that the physical, physiological, cellular, and cytokine, that is the interferon, four kind of innate immunity which are associated with our body since birth, जो जन्म से ही हमारे शरीर से जुड़े रहते हैं. एंड इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी वी हैव सीन दैट इट इज आल्सो नोन एज एडाप्टिव इम्यूनिटी, इन विच वी अडॉप्ट और वी एक्वायर द इम्यूनिटी थ्रू द एक्सटर्नल सोर्सेज, थ्रू आउट सोर्सेज ऑफ एंटीबॉडीज. So children, and after completing immunity and the lymphoid organ, we have also seen the structure of antibody. Today also, in today's class also, I have again elaborated the structure of antibody, and then we have seen the new topic, lymphoid organ. We have seen that in primary lymphoid organ, the formation of lymphocytes takes place, and in secondary lymphoid organs, maturation of lymphocytes takes place. And now come to the next topic, that is pathogens. Since you know very well that we are discussing the chapter health, human health and disease, चूंकि हम लोग ह्यूमन हेल्थ और डिजीज की बात कर रहे हैं, तो डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म आर वेल नोन एज पैथोजेंस. जो भी डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म है, एजेंट्स हैं, उनको पैथोजेंस कहा जाता है बच्चों, जो हमें रोग फैला रहे हैं. बेसिकली पैथोजेंस आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज व्हिच आर बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंजाई and worms. These are the 5 main kind of pathogens spreading diseases, causing disorders, and being the enemy of mankind. ये pathogens mankind के enemy होते हैं, दुश्मन होते हैं. और ये बेसिक तरीके से 5 जो मेन पैथोजेंस हैं वो वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई और वर्म्स हैं, जो हमें रोग फैलाते हैं. सो द डेफिनेशन ऑफ पैथोजेन is the disease causing organism or disease causing agents are known as pathogens, and the branch of science which deals about pathogens is known as pathology. पैथोलॉजी बच्चों, यहाँ पे हम ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट करवाते हैं, किसी भी रोग की डायग्नोसिस करवाते हैं. बेसिकली पैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals about the pathogens. That is the branch of biology which deals about the pathogens, जो हमें पैथोजेंस के बारे में बताता है, रोगाणुओं के बारे में बताता है, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स के बारे में बताता है. दैट इज फिजियोलॉजी. सो सी हियर, इन बायोलॉजी अ पैथोजेन इन द ओल्डेस्ट एंड ब्रॉडेस्ट सेंस इज एनीथिंग दैट कैन प्रोड्यूस डिजीज. जो भी देखिए रोग फैलाता है उसको पैथोजेन कहा जाता है. ओल्डेस्ट सेंस में या ब्रॉडेस्ट सेंस में अगर हम बात करें तो डिजीज कॉजिंग एनीथिंग जो कि डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज पैथोजेन. पैथोजेन में आल्सो बी रिफर टू एज एन इन्फेक्शियस एजेंट. ध्यान दीजिएगा, एक इन्फेक्शियस एजेंट और सिंपली अ जर्म. जर्म मीन्स कीटाणु, एक कीटाणु या एक रोगाणु जो रोग फैलाता है, या सिंपली जो इन्फेक्शियस एजेंट है, जो संक्रमण फैलाने वाला एजेंट है, दैट इज पैथोजेन. एंड दिस टर्म हैज बीन यूज्ड टिल 1880s. 1880 से ये टर्म यूज हो रहा है बच्चों, पैथोजेंस, रोगाणु, यानी डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर सेड टू बी एज पैथोजेंस. And the branch of science which deals about pathogens is known as pathology. And basically the pathogens is infectious agents, or simply we can say a germ. The main pathogens are of humankind are virus, bacteria, protozoa, fungi and worms. Now see here the 3 ways for the to spread the pathogens. 3 ways here. देखिए यहाँ पर pathogen है, पैथोजेन इट नीड्स कंडक्टिव या कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, और उसके बाद ससेप्टेबल होस्ट. तो इस तरह ससेप्टेबल होस्ट के पास फिर पैथोजेन, और फिर इस तरह कंडक्टिव इन्वायरमेंट के थ्रू या बार बार जो है होस्ट के पास जाता रहेगा और डिजीज कॉज करता रहेगा. तो दिस वन इज द ट्रायंगल. ध्यान दीजिएगा, इसको डिजीज ट्रायंगल कहा जाता है बच्चों, डिजीज ट्रायंगल. ये देखिए पैथोजेन, फेवरेबल इन्वायरमेंट और ससेप्टेबल होस्ट. ये देखिए यहाँ पर पैथोजेन है, ये
इस तरीके से यहाँ पर भी अभी कोई डिजीज नहीं, यहाँ कोई डिजीज नहीं, यहाँ कोई डिजीज नहीं, लेकिन यह डिजीज कैसे फैलाएगा यह देखिए। जब फेवरेबल इन्वायरमेंट पैथोजन को मिलेगा तो यह मल्टीप्लाई करेंगे होस्ट के अंदर और डिजीज काज करते चले जाएंगे। तो ऑल थ्री रिक्वायर्ड फॉर डिजीज टू प्रोलिफरेट। अगर डिजीज को फैलना है तो इसके लिए ससेप्टेबल होस्ट की जरूरत है जहाँ पे यह मल्टीप्लाई कर सके, फेवरेबल इन्वायरमेंट की जरूरत है ताकि ये आसानी से नंबर भी बढ़ा सके और स्प्रेड भी हो सके। तो दिस वन इज द मेथड फॉर द स्प्रेडिंग डिजीज। एंड नाउ कम टू सी द एलर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, द एलर्जी। नॉर्मली बच्चों अगर हमें किसी भी चीज से अगर हम एग्जैगरेटेड रिस्पांस शो करते हैं, द एग्जैगरेटेड रिस्पांस ऑफ आवर इम्यून सिस्टम इज नोन एज एलर्जी। एलर्जी नाना प्रकार का होता है। बहुत से लोगों को धूप से एलर्जी होती है, बहुत से लोगों को धूल से एलर्जी होती है, बहुत से लोगों को शोरगुल से एलर्जी होती है। तो एलर्जीज आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड इट क्रिएट्स द एग्जैगरेटेड रिस्पांस ऑफ इम्यून सिस्टम। यह हमारे इम्यून सिस्टम का एग्जैगरेटेड बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर रिस्पांस शो कराता है, तो इसको हम एलर्जी बोलते हैं बेसिकली इन बायोलॉजी लैंग्वेज। सो अ कंडीशन इन विच द इम्यून सिस्टम रिएक्ट्स एबनॉर्मली टू अ फॉरेन सब्सटेंस। देखिए किसी भी फॉरेन सब्सटेंस के प्रति अगर हमारा इम्यून सिस्टम एबनॉर्मली रिएक्ट कर रहा है, या एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है एग्जैगरेटेड, तो एग्जैगरेटेड रिस्पांस अगर हमारे इम्यून सिस्टम का शो हो रहा है, एग्जैगरेटेड रिएक्शन शो हो रहा है, एबनॉर्मल रिएक्शन अगर हमारा इम्यून सिस्टम शो कर रहा है किसी भी फॉरेन सब्सटेंस के प्रति, तो दैट इज एलर्जी। फिर से देखिएगा, अ कंडीशन इन विच द इम्यून सिस्टम रिएक्ट्स एबनॉर्मली टू अ फॉरेन सब्सटेंस। जब हमारा इम्यून सिस्टम किसी फॉरेन सब्सटेंस के प्रति एबनॉर्मली रिएक्ट करता है, एग्जैगरेटेड रिस्पांस शो करता है, तो सच कंडीशन इज सेड टू बी एज एलर्जी। Allergy is a damaging immune response by the body to a substance, especially a particular food, pollen, fur or dust। ध्यान दीजिएगा, कोई पर्टिकुलर खाने से भी एलर्जी हो सकती है। पॉलन ग्रेन्स तो सबसे अधिक एलर्जेंस माने ही जाते हैं। आप पार्थेनियम से परिचित होंगे, पार्थेनियम द कांग्रेस ग्रास, पार्थेनियम का पॉलन ग्रेन, इसको पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एलर्जेंस माना गया है, खासतौर पे हमारे देश में, क्योंकि यह अमेरिका से आया ग्रीन रेवोल्यूशन के समय में, जब हाई यील्डिंग वेराइटी और डिजीज रेजिस्टेंट सीड गेहूं के मंगाए गए, व्हीट के मंगाए गए अमेरिका वगैरह से, तो उसी गेहूं की वेराइटीज के साथ में पार्थेनियम ग्रास चला आया बच्चों, कांग्रेस ग्रास कहा जाता है। और पार्थेनियम का पॉलन ग्रेन को सबसे अधिक एलर्जेंस माना जाता है, जो कि काफी डिसऑर्डर कॉज करता है। तो आप देख रहे हैं कि एलर्जेंस क्या क्या हो सकते हैं बच्चों। पहले तो आप यह समझ लें कि एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंसेज आर नोन एज एलर्जेंस। जिस भी सब्सटेंस से हमें एलर्जी होती है उस सब्सटेंस को एलर्जेंस कहा जाता है। एंड एलर्जेंस आर स्पेशली अ पर्टिकुलर फूड, कोई पर्टिकुलर फूड आइटम भी हो सकता है, पॉलन ग्रेन भी हो सकता है, बर्ड्स के फर भी हो सकते हैं, या डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, टू विच इट हैज बिकम अ हाइपर सेंसिटिव। इसके लिए भी हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव बन जाए, एबनॉर्मल रिस्पांस शो करने लगे या एग्जैगरेटेड रिस्पांस शो करने लगे, दैट इज बेसिकली एलर्जी। सो चिल्ड्रन, allergy is the abnormal response or exaggerated response or reaction of the immune system towards any substances, and such substances are known as allergens. The most common symptoms of allergy are sneezing, coughing, watery eyes and running nose. These are the common symptoms. एलर्जी के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, स्नीजिंग लगातार छींकने लगना, कफिंग लगातार खांसने लगना, वाटरी आइज आंखों से खूब पानी का बहना, या रनिंग नोज, दीज आर द कॉमन सिम्टम्स। ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। और जिस भी सब्सटेंस से हमें एग्जैगरेटेड रिस्पांस हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर आता है, सच सब्सटेंसेज आर सेड टू बी एज एलर्जेंस, उसको एलर्जेंस कहते हैं। और कॉमन एलर्जेंस मैंने बताया आपको कि कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम्स, pollen grains, furs या dust particles are the common allergens. Okay children, so see here the allergy, here two kind of allergy you are seeing। देखिए यहाँ पर भी किसी डस्ट पार्टिकल pollen grain से एलर्जी हो गया है, धूप से या धूल से, डस्ट पार्टिकल से, किसी भी चीज से, जिसकी वजह से स्किन में रैशेस दिखाई दे रहे हैं बच्चों आपको यहाँ पर, और रेडिश रैशेस, और यहाँ पर देखिए स्नीजिंग। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। कॉमन सिम्टम्स of allergy are rashes on skin, sneezing, coughing, running nose and watery eyes. So children, you are seeing here the common symptoms of allergy and see here the rashes। यहाँ पर देखिए इसको मैग्नीफाइंग लेंस से बड़ा करके भी दिखाया जा रहा है
किस तरीके से ये दाने जैसे रैशेस यहाँ स्किन में हो गए हैं, ये दिस वन इज द एलर्जी। यह एलर्जी है बच्चों, और ये एग्जैगरेटेड रिस्पांस है, नॉर्मल नहीं बल्कि एबनॉर्मल रिस्पांस है हमारे इम्यून सिस्टम का ड्यू टू द पर्टिकुलर सब्सटेंसेस, एंड सच सब्सटेंसेस आर सेड टू बी एज एलर्जेंस, और ऐसे सब्सटेंसेस को एलर्जेंस कहा जाता है बच्चों, जिससे हमें एलर्जी होती है। सो चिल्ड्रन, इन दिस वे वी आर डिस्कसिंग द exaggerated exaggerated response, the abnormal response of immune system towards particular substances। तो उसको कभी कभी जैसे हम अगर पहाड़ी वाले एरिया में गए बच्चों, मान लीजिए हम पहाड़ी एरिया में गए, और पहाड़ी एरिया में जो है वहां पर लो ऑक्सीजन का लेवल होता है, आप जानते हैं जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे ऑक्सीजन का लेवल लो होता चला जाता है। तो जाहिर सी बात है हमें शुरुआत में दिक्कत होती है, कुछ दिनों तक हमें सफोकेशन होगा, परेशानियां होंगी, दम घुटेगा, लेकिन धीरे धीरे हम वहां पर एडाप्ट कर जाते हैं। लेकिन अगर हमें किसी चीज से एलर्जी है, सपोज पॉलन ग्रेन से, या सपोज करिए कि हमें डस्ट पार्टिकल से एलर्जी है, तो अगर डस्ट पार्टिकल हमारे अंदर जा रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारा इम्यून सिस्टम जो है एबनॉर्मल रिस्पॉन्स हो करने लगेगा, एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स हो करने लगेगा, तो उसको हम बोलेंगे एलर्जी। और ध्यान रखिएगा, ऐसे जो भी सब्सटेंस होंगे उनको कहा जाएगा एलर्जेंस। सो चिल्ड्रन, आफ्टर एलर्जी सी हियर द अनदर टॉपिक, दैट इज ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज ध्यान से समझिएगा। ऑटो इम्यून डिजीज इज आल्सो नोन एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कहा जाता है बच्चों। बेसिकली एन ऑटो इम्यून डिजीज इज अ कंडीशन अराइजिंग फ्रॉम एन एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स टू अ नॉर्मल बॉडी पार्ट। हमारे किसी नॉर्मल बॉडी पार्ट का एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जो है कुछ जेनेटिक और कुछ अननोन रीजन्स की वजह से हमारे बॉडी का कोई पार्ट एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स शो करने लगता है, जबकि वो नॉर्मल बॉडी का पार्ट है, लेकिन एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स शो करने लगता है। दैट इज ऑटो इम्यून डिजीज। आपने रूमेटाइड अर्थराइटिस का नाम सुना होगा। एक अर्थराइटिस होता है रूमेटाइड अर्थराइटिस, जिसमें हमारे बॉडी के सेल्स ही हमारे ही नी पेटला को खींचने लगते हैं। हमारा ही नी पेटला धीरे धीरे गठिया का रूप ले लेता है, अर्थराइटिस का रूप ले लेता है, एंड ड्यू टू सम जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन, ध्यान दीजिएगा, ड्यू टू सम जेनेटिक एंड सम अननोन अदर रीजन्स, our normal body parts show the abnormal immune responses to a particular substance। किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए या बिना सब्सटेंस के भी हमारे बॉडी के अंदर से ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स आने लगता है, तो सच डिजीज इज सेड टू बी एज ऑटो इम्यून डिजीज और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसको बच्चों आप नोट कर लीजिए, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ। एन ऑटो इम्यून डिजीज इज अ कंडीशन अराइजिंग फ्रॉम एन एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स टू अ नॉर्मल बॉडी पार्ट। नॉर्मल बॉडी पार्ट के द्वारा एबनॉर्मल इम्यून का रिस्पॉन्स। चिल्ड्रेन, देयर आर एटलीस्ट 80 टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। ध्यान दीजिएगा, कम से कम 80 तरीके के ऑटो इम्यून डिजीजेस को रिपोर्ट किया गया है। नियरली एनी बॉडी पार्ट कैन बी इन्वॉल्व, और हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट इसमें इन्वॉल्व हो सकता है चिल्ड्रेन। तो कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड लो ग्रेड फीवर एंड फीलिंग टायर्ड। इसका एक कॉमन सा सिम्टम है हमेशा हल्का बुखार रहना, माइल्ड फीवर रहना, बहुत ही लो ग्रेड का फीवर, और फीलिंग टायर्ड, हर समय थकावट का अनुभव होना। तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि यह ऑटो इम्यून डिजीज हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली अगर टायर्डनेस की फीलिंग है तो वह वीकनेस या ज्यादा काम करना ही इसका कारण समझ लेते हैं, जबकि दिस इज इट मे बी एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और ऑटो इम्यून डिजीज इन विच द नॉर्मल बॉडी पार्ट्स आर शोइंग द abnormal response या abnormal immune response। So children, in this way we have discussed the different kind of lymphoid organs and allergy, and then after allergy this is a kind of allergy, basically it is autoimmune disease or autoimmune response which is showing by the our normal body cells। देखिए अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, अभी पीछे मैं बताया कई तरीके के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, 80 से भी ज्यादा, या यहाँ पे लिखा हुआ ओवर 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैव बीन रिपोर्टेड। देखिए लंग्स में भी हो सकता है बच्चों, स्किन में या मसल्स में भी हो सकता है, जो अभी मैं बता रहा था टायर्डनेस वाला, या बोन्स में हो सकता है, मैं अभी रूमेटॉइड अर्थराइटिस का एग्जांपल दिया था, या थायराइड ग्लैंड में हो सकता है,
थायराइडिटिस हो जाता है। और यहाँ पर देखिए ये थायराइड ग्लैंड में, और यह ब्रेन में भी हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाता है, या ब्लड में ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर का भी कारण बन सकता है। तो और नर्व सिस्टम में या न्यूरोपैथी या पैरालिसिस का भी कारण बन सकता है। तो more than 100 different kind of autoimmune disorders have been reported, which are the abnormal response of the normal body part, normal body part का abnormal response. So my dear kids, in today's class of human health and disease, we have just seen the structure of antibodies, differentiated the active and passive immunity on the basis of 2 or 3 charts and tables, and then after we have just discussed about the lymphoid organs. We have seen the primary lymphoid organs, bone marrow and thymus, and the secondary lymphoid organs, tonsils, pairs, patches of large intestine and appendix, and the MALT, that is mucosa associated lymphoid tissue. Children, after completing the immunity part, we have also seen here in human health and disease, we have also seen the autoimmune disorder and allergy. Okay, so in the next class we have to discuss about the last topic of this chapter, that is drugs and alcohol abuse. तो बच्चों आप देख रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एक नियमबद्ध तरीके से हम लोग आगे चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने हेल्थ और डिजीज का डेफिनेशन, डिजीज के टाइप्स को देखने के बाद लाइन से हम लोगों ने कॉलरा, टाइफाइड, ये आपका अमीबिक डिसेंट्री, दैट इज लूज मोशन, और इसके बाद निमोनिया, इसके बाद एड्स, कैंसर, मलेरिया, ये पढ़ने के बाद हम लोगों ने डिफरेंट काइंड के लिम्फॉइड टिश्यू को देखा, लिम्फॉइड ऑर्गन्स को देखा, इम्यूनिटी, इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को देखा हम लोगों ने, और इसके बाद जो है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी। अब हम लोग बच्चों अभी हम लोग को इसके बाद वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन पढ़ना है, तो आप इसको थोड़ा अपने से पढ़े रहेंगे ताकि अगले क्लास में और ज़्यादा आपको समझ में आए। तो वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन यह पढ़ लेने के बाद we shall start drug and alcohol abuse. So my dear kids, thank you very much, and we shall start in the next topic, drugs and alcohol abuse, in the next class. Thank you very much.